Hello and welcome everyone. I am Sakshi Parikh, your host for today, and I am absolutely thrilled to have you with us. Whether you are a curious learner or someone passionate about the world of technology, you are in for something truly inspiring today. We have a very special guest joining us, someone who is not only shaping the future of AI, but also empowering countless others to do the same. A true visionary, innovator, and the leader in the field of artificial intelligence, please join me in welcoming engineer Harshvardhan Purohit, a proud Stanford University graduate and BTech Gold medalist in artificial intelligence and machine learning. Engineer Harshvardhan Purohit has over 51 global certifications, including notable credentials in generative AI from IBM. He is the founder and CEO of Sin Education and Technology Private Limited, a rapidly rising startup delivering cutting edge AI, AR, and VR solutions, along with branding consultancy and edtech innovations. Under his dynamic leadership, Sin has earned the prestigious Best Startup of the Year award and a spot among the top 25 startups by Pedal Start. He also established the Sin School of AI, providing world class AI training and practical implementation strategies. Through initiatives like the Artificial Intelligence and ML Specialization, the Sin official podcast, he is helping students, professionals, and businesses harness the power of AI and step confidently into the future. So stay tuned because this conversation is going to be packed with insights, inspiration, and a powerful glimpse into the future of technology. Over to you, Harshvardhan, sir. Thank you so much, ma'am. Firstly, I would like to thank the complete team of Center for Online and Distance Education at Modi University, MU Code, for giving me this prestigious opportunity to present before you my tips and techniques of marketing hacks with artificial intelligence. As we all know that AI is one of the phenomenal era in which we are, which is of artificial intelligence, and we know that artificial intelligence is not only restricted till chat gpt, it is more than that. Many businesses and many startups are changing the dynamics of the world by using the artificial intelligence and ML solutions in that. And the best part is AI not only reduces your work management efficiency, but also it actually help us to boost your workplace dynamics and also in the marketing. The marketing is the very fundamental and crucial step of any business, we all know. So I would like to request all the participants and everyone to be open in this particular discussion and take this session as a discussion part, because AI is a growing field and we all know that there is nothing full stop in it. Only commas are there in artificial intelligence, and we are in the era we can create together many things. So I will request everyone to be with me in this particular session. So talking about this session, so this session actually will be broken into four particular parts. At the first part, we will be discussing about the four pillars or four dynamics which are important, and after integrating with artificial intelligence, how the marketing has changed. We will talk about that dynamics by the case studies. And after that, we will talk about generative AI, how generative AI is actually improving the artificial intelligence power and also helping businesses to earn millions. And you don't believe me, I also met many founders which are solo in their startups and still they are very good at marketing, because right now it's a time of agentic AI. You can see, like, if you have played a game in a very easy way, I can tell you. Suppose you play PUBG, right? So in PUBG, you choose your avatars for different part. You choose different gears which you use into the game. Just like that, you can choose different AI models now. Like if you need a marketing assistant, you can choose a marketing assistant one. If you need the financial management, you can choose the financial management bot for you. So right now the dynamics has changed. Only the demand for experts are raising, and it is not like you will get easy job. You will have to become expert in your field, and also you will require the knowledge of artificial intelligence. So this particular session will be very great, and believe me, this one hour will be the life changing one hour for you, because you will be learning many things here. The things which you have missed in your curriculum, the things which you need to take the industry exposure, it will be very helpful for all of you guys. Okay. So just I will dive into the four pillars. So if we talk about very basic part, okay, I will just present my screen again. Okay.
I hope my screen is visible to you all. Can you please confirm me once? There was one black surface you can just see. Okay. So, as we all know, I will talk about the four pillars. Now, these four pillars are very, very important. If we talk about any business, if I ask you in general, if we talk about any business, what are the four pillars which are important in any business? What are the four pillars? Like, if we talk about very generalized scenario, very generalized in business, the first thing which is important is profit. Without profit, no business can survive. अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा कोई बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप पैसा ही नहीं अर्न कर रहे हो तो आप बिजनेस में लगाओगे कैसे? ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में आपको काफी सारे इंप्लीमेंटेशन गाइड्स मिलेंगे। मैं आपको चैट बॉक्स में अभी एक ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें सारी चीजें आपको इंप्लीमेंटेशन वाली चीजें मिलेगी, क्योंकि केवल सेशन देख के जाने से कुछ नहीं होगा। यू विल हैव टू इंप्लीमेंट दिस ऑल, राइट? यू नीड अ प्रॉपर एक्शन प्लान और प्रॉपर डायनामिक प्लान विच यू कैन इंप्लीमेंट। ओके, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट, हर बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉफिट। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है पीपल, जो लोग। ठीक है, अब आप इसमें दोनों कंसिडरेशन कर सकते हो। ठीक है, आप किसको टारगेट कर रहे हो, किन लोगों को टारगेट कर रहे हो? बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न यही होता है कि आप अपना प्रोडक्ट बना किसके ले रहे हो, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी जो और एक चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप कुछ गैस कर सकते हो क्या हो सकती है? फोर पिलर्स होते हैं गाइस, फोर पिलर्स। आप गैस करके बताइए, फोर पिलर्स होते हैं। एनीबडी ऑफ यू कैन गेस व्हाट आर द फोर पिलर्स? एग्जैक्टली, एक प्रॉफिट और एक प्रोसेस। प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस कैसे प्रोसेस पे वर्क कर रहा है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, राइट? अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है कल्चर। अगर आप लोगों ने गूगल के बारे में सुना होगा तो गूगल अपने कल्चर को लेके बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये जो चार पिलर्स हैं, ये मोस्ट एसेंशियल पिलर्स हैं, राइट? मैं आपको कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं बताने वाला, इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिकल थिंग। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, इफ यू डोंट हैव प्रॉफिट, यू कांट डू एनीथिंग, राइट? यू कांट वर्क ऑन इनोवेशंस। सेकंड, अगर आपके पास लोग ढंग आप टारगेट नहीं कर पा रहे, अपनी ऑडियंस ढंग से टारगेट नहीं कर पा रहे। देखो, एआई का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार पार्ट पता है क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजें रेकमेंड कर सकता है, रेकमेंडेशन इंजन। वो रेकमेंड करता है कैसे, कभी ये चीज सोची है? आप लोगों ने नेटफ्लिक्स यूज करा होगा, आपके सामने अपना आप मूवीज आ जाती है, राइट? आप सोचिए, अगर आप एक ऐसा स्टार्टअप बना सकें जो लोगों की सोच से पहले ही वो प्रोडक्ट उनको दे दे, तो आप बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। सारे स्टार्टअप्स वहीं से ही निकले। लाइक इफ यू टॉक अबाउट अमेजॉन, तो राइट नाउ अमेजॉन क्या करता है? अमेजॉन आप देख सकते हैं, आप जो भी डेटा सर्व करते हो उस डेटा के बेस पे आपको प्रोडक्ट बता देता है, आपको तुरंत बता देता है आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, राइट? लोग, ठीक है, लोगों का मैनेजमेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? टारगेट ऑडियंस अगर अच्छी नहीं होगी ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्रोसेस, अब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल ही प्रोसेस में होते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता कैसे चीजें हमें आगे लेके जानी है। और बात करें कल्चर की, अगर आपके स्टार्टअप में और आपके ग्रुप में लर्निंग कल्चर ही नहीं, आप नई चीजें सीख ही नहीं पा रहे हो, तो आप कभी उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। जैसे हम बात करें गूगल, तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आज आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बहुत नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। फ्री कोर्सेज लेके आ रहे हैं, फ्री प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड बुक्स लेके आ रहे हैं। ये सब क्यों ला रहे हैं? होगा तो मैं आपको उसका भी इस ड्राइव में ही अपलोड कर दूंगा। एक गूगल ने फ्री प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड बुक निकाली है। तो ये सब चीजें क्यों हो रहा है? एवरी बिजनेस, इफ यू टेक एनी बिजनेस, यू नो, आपको कोई बिजनेस अगर शुरू भी करना है, आपके दिमाग में जस्ट एक आइडिया है, तो आप इन चार पिलर्स के ऊपर सारा गेम खेल सकते हो। ठीक है, यही चार पिलर्स हैं मेजरली हर बिजनेस के। अब हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा और ढंग से कि ये चार पिलर्स एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मार्केटिंग में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कैसे पड़ता है इन चार पिलर्स का, इसके ऊपर हम पहले डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और बहुत मजेदार होने वाला है सेशन। तो हम अगर बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो जब अर्ली 2000s का टाइम था, हम एक स्टोरी बात करते हैं, जनरल स्टोरी के ऊपर जाते हैं। ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब ग्रो हो रही थी अर्ली अर्ली 2000s में, चीजें ग्रो हो रही थी, राइट? तो यहां पर क्या था? कोई रेवेन्यू नहीं था, कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा था, बिकॉज फ्लिपकार्ट भी उस समय स्टार्टअप की तरह ही ग्रो करता था। एनालिटिक्स यूज की जाती थी वहां उस टाइम भी, कि भाई कस्टमर किस जगह क्या मांग रहा है, बट उस समय चीजें थोड़ी सी टफ थी, है ना? हम आज हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। अब अभी हम आगे जाके एक एक्टिविटी भी करेंगे जिसमें हम काफी टूल्स को देखेंगे। हम एआई के प्रॉपर एक्सरसाइज करके दिखाएंगे आपको यहाँ पर ही, इसी पर्टिकुलर वेबिनार में। ठीक है, हम इसको लाइव यूज करेंगे।
इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अर्ली 2000s में क्या था, हमारे पास कुछ ये चीजें नहीं हुआ करती थी। आज हमारे पास ये सारा सपोर्ट है, ठीक है। बट अगर हम बात करें थोड़ा आगे, 2014 में, 2013 में और 2011 के अराउंड, ठीक है, आप पकड़ लो 2011 से चैट जीपीटी पे काम होना शुरू हो चुका था, ठीक है। लाइक अराउंड 2011 द चैट जीपीटी वर्क इज अबाउट टू बिगिन, बट इट इज लॉन्च्ड इन 2020, ठीक है। 2021 में लॉन्च हुआ चैट जीपीटी, बट काम उसका 10 साल पहले से शुरू हो गया था। तो दिस एक्चुअली स्टार्ट्स द एरा ऑफ एआई। एआई उस समय बाहर तो था, फॉरेन कंट्रीज में उस पर रिसर्च हो रहे थे, बट इंडिया में इतना नहीं था। बट 2014 तक आते आते हमें एआई के कुछ एसेंस देखने को मिला। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि उस समय जो फ्लिपकार्ट था उसका डायनामिक बिल्कुल चेंज हो गया, जैसे उन्होंने कुछ चीजें चेंज करी। जैसे अगर हम पीपल की बात करें, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, टारगेट ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। अगर इफ यू डोंट हैव राइट टारगेट ऑडियंस, आप कुछ भी लेके चले जाओ, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप सर्दी के कपड़े लाके अभी राजस्थान में बेचोगे तो वो नहीं बिकेंगे। दैट्स कंप्लीटली ट्रू थिंग, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द मार्केट, ठीक है। आपको कहाँ जाके सेल करना है, वो वहां पर सेल होगा। अगर मैगी है तो मैगी का मैक्सिमम जो मार्केट है, आप देखोगे हिली स्टेशन में ज्यादा होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर ठंड है और लोगों को उसके साथ वो इंटीग्रेट करना पसंद है। तो वैसे ही आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट डायनेमिक्स, यू विल हैव टू चूज विच टारगेट ऑडियंस यू आर एड्रेसिंग, राइट। और अब एआई से आने के बाद आप वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, एंड आई होप यू ऑल विल लव इट, ओके। सो आई विल बी प्रेजेंटिंग राइट अगेन, वेट अ सेकेंड, ओके। अगर क्रोम विजिबल हो तो मेरे को प्लीज आप एक बार बताना। ओके, सो क्रोम इज विजिबल टू एवरीवन। गूगल क्रोम आपके सामने है, ठीक है। तो हम एक साइट पे जाएंगे सबसे पहले, गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। आज ये सारी फैसिलिटीज आपके पास है, ठीक है। आप इसमें जाके सर्च करो कि दुनिया क्या सर्च कर रही है राइट नाउ। लेट्स टेक एग्जांपल कि भाई अगर मेरे को सपोज क्रिकेट किट बेचना है, हमने कुछ भी सर्च कर दिया, तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे तो अभी हमें पता लग जाएगा। देखो कि अभी इंटरेस्ट ओवर द टाइम, क्योंकि आईपीएल शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर, आप देख सकते हो इसकी डिमांड कितनी बढ़ रही है। बट अगर हम इसको चेंज कर दें, इसी चीज को अगर हम अभी सर्च करें यूएस के अंदर, तो यूएस में कितना जाता होगा ये, लेट्स सर्च। तो आप देख सकते हो अभी वहां पर इतना नहीं है, राइट। अगर हम वापस इसमें इंडिया करें तो, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हो अभी इसकी डिमांड कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होके एक लेवल पे चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर आईपीएल चल रहा है, वी ऑल नो, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो उसमें भी गुजरात में सबसे ज्यादा ये चीज सर्च हो रही है। आपको नहीं लगता यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ पता लग गया कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, और हम फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और डिफरेंट मार्केटिंग के सोर्सेज के थ्रू वहां तक अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है, बस और करना क्या है। दैट्स इजी। ये आपका पहला पी क्लियर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि पीपल, द पीपल इज वेरी क्लियर बाय दिस, ओके। अब यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हो, लाइक लाइक अगर आपको क्रिकेट किट और अगर आपको फुटबॉल कंपेयर करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल फुटबॉल, इसका किट तो होता नहीं है, फुटबॉल बॉल अगर मैं सर्च करूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो इंडिया में अभी उस चीज का, उस पर्टिकुलर चीज पे नहीं है। बट अगर हम जाके सर्च करते हैं ब्राजील, लेट्स टेक एग्जांपल यार, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, इसके पास अभी कोई पास डेट देगा, कोई डेटा नहीं है। अगर 12 मंथ का सर्च करें तो हाँ, उसका मिलेगा। आप देख सकते हो ब्राजील में कितना क्रिकेट के ऊपर सर्च हुआ है। तो आप यहाँ से इस चीजों को डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली एक्सेल फॉर्मेट में। आप ये देख सकते हो डायरेक्टली एक्सेल में डाउनलोड हुआ। तो यहाँ पर हम पहली रिसर्च करना सीख गए, विच इज ऑफ पीपल। वहां पर भी कहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है आप देख सकते हो। या क्रिकेट किट का इतना नहीं है, बट अगर हम इसको चेंज करके इंडिया कर दे तो यू कैन सी, आपके सामने चीज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ्स है, और यही चीज हम यूज करते हैं जब हम रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, जब हम एक कस्टमर पर्सोना बनाते हैं। पर्सोना मतलब कस्टमर के बारे में एक डमी कस्टमर बनाना, कि हमारा कस्टमर कैसा होगा जिसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाउ अवर कस्टमर विल लुक लाइक, हाउ ही विल फील, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ ही थिंक्स अबाउट दैट प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी डिमांड कहां पर सबसे ज्यादा है। करेक्ट, यहां से हमारा पहला चीज क्लियर हो जाती है, विच इज ऑफ पीपल, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वापस आपके सामने मैं आ गया, इस चीज को वापस प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद कितना ज्यादा चेंज आया, और हमने भी अभी देख लिया एक लाइव केस स्टडी के थ्रू कि भाई कैसे हम ये चीज कर सकते हैं। अब नए चैलेंजेस क्या है जब हम ये चीज कर पाए, तो यहाँ जो सबसे पहले जो चीज आई वो ये आई, देखो यार, आपने उसका ट्रेंड तो पता लगा लिया, बट अभी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, पीयर प्रेशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो उसके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। और आज आप देख रहे हो, आज रील्स का टाइम चल रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैन प्रोडक्ट को लेके बहुत कम हो गया है, हर चीज को लेके। आप रील्स 5-5 सेकंड में स्क्रॉल करते हो, देन यू कैन सी दैट अटेंशन स्पैन इज, इफ अकॉर्डिंग टू रिसर्च आई टेल यू, इट्स अबाउट 3 सेकेंड्स। इट्स रियली लो गाइस, 3 सेकेंड्स बहुत कम है। 3 सेकंड में आपका डिसीजन बन जाता है ये प्रोडक्ट वो उठाएगा कि नहीं उठाएगा। इसीलिए डी मार्ट एक्स्ट्रा चार्ज करती है शेल्फ के हिसाब से, कि आप जब डी मार्ट के अंदर जाओगे तो आपके सामने जो शेल्फ आएगी वहां पर क्या होगा, उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर, राइट। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, विच इज द प्रोसेस, राइट। हमने क्या बोला था, प्रोसेस, काम करने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक कंपनी आती है, इसका नाम है कंपेयर.com। अब ये क्या काम करती है, लाइफ इंश्योरेंसेस को कंपेयर करती है, इजी। ठीक है भाई, भाई जैसे आज हम देखते हैं ट्रीवागो अपने पास है जो होटल्स कंपेयर करता है, इट्स जस्ट लाइक दैट, बट इट एक्चुअली कंपेयर्स द लाइफ इंश्योरेंस, राइट। So what it does, how the process actually impact this particular thing, that's the important part, right? So on this particular thing we'll be focusing more. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि compare.com प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है, which is the second pillar we are encountering. अब यहाँ पर एक बहुत प्यारी टर्म आई है, विच इज नोन एज दी एजाइल डेवलपमेंट। कितने लोगों को आप में से एजाइल के बारे में पता है, एक बार अपने प्लीज बताइए। All the persons who are available here, can you please tell me, like, what do you know about agile? Anything you can just share to me. Anything, guys, anything. What do you know about agile? Agile क्या चीज है? Okay, 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 I will tell you guys, okay, no problem. तो एजाइल क्या चीज है आपको पता है? अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अपन जनरल प्रोडक्ट की शुरुआत कैसे करते हैं, हम कुछ रिसर्च करते हैं। ठीक है, मार्केट में जाते हैं, पता करते हैं क्या चीज चल रही है, ऑनलाइन रिसर्च करते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया, लोगों से पूछते हैं, खुद अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है या नहीं आ रही है, फिर हम क्या करते हैं, उस चीज के ऊपर वर्क करते हैं, राइट। हम फैक्ट्स एंड डेटा के बेस पे हम एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं, फिर उस प्रोटोटाइप को हम मार्केट में लेके जाके टेस्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, राइट। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा एक बेसिक प्रोसेस खत्म होता है। ठीक है, बट एजाइल कहता है कि आपको, जैसे मैंने आपको एक अप्रोच बताई कि अपन इसमें कर क्या रहे थे, इसमें अपन कर क्या रहे थे, इस वाले पर्टिकुलर चीज में हम लोग ऊपर से नीचे एज अ वाटर फ्लो की तरह जा रहे हैं। वाटरफॉल आपने देखा है कैसा होता है? वाटरफॉल ऐसा होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। हमने बेसिक प्रोटोटाइप बनाया, उसको मार्केट में लेके गए। ठीक है, उसका हमने देखा इवेल्युएशन क्या हुआ, बेसिक हम एक वाटरफॉल की तरह नीचे आ रहे हैं, राइट। बट एजाइल क्या करता है पता है? एजाइल जाता है ऐसे, एजाइल गोज लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, हर स्टेज पे वो वापस री एवेल्युएट करता है, हर स्टेज पे वापस रीचेकिंग होती है, जिससे हमें एक फिनिश्ड प्रोडक्ट अच्छा मिल सके। हमें एक फिनिश प्रोडक्ट अच्छा मिल सके, ये एजाइल का सबसे प्यारा चीज है। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज है। अब मैं आपको क्या करूंगा ना, एक एजाइल का फ्रेमवर्क भी दे देता हूँ, इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल यू। ठीक है, ये हमने आप सबके लिए क्रिएट किया है, जिससे आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में। क्योंकि आप एमबीए कर रहे हैं, आप डिफरेंट बिजनेस का इंटरेस्ट रखते हैं, तभी आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फॉर दैट आई एम शेयरिंग यू वन ड्राइव लिंक। यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बना के रखे हुए हैं, इसको आप यूज कर सकते हो, इट्स रियली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको आराम से एक्सेस करो। ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दिया, इट इज इन द चैट बॉक्स। आप सबको आ गया? आई शेयर यू द ड्राइव लिंक, ओके। ओके, तो यहां पर अब हम देखते हैं बेसिक चीज, आपके सामने चीज लाऊंगा। दिस इज द एजाइल फ्रेमवर्क जो मैंने आपको दिया है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है, जो करंट वर्क फ्लो चैलेंजेस आपके वर्क फ्लो में क्या आ रहा है। सपोज आपका कोई बिजनेस है, आप अपने पार्टनर्स के साथ कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो पहले चैलेंज आइडेंटिफाई करेंगे,
फिर हम हमारे गोल बनाएंगे, हम चाहते क्या है करना, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं प्रोसेस में, वो चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको एजाइल मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, ये दोनों फ्रेमवर्क्स आपको मैंने दिए हैं, स्क्रम एंड कैनबान, ये दोनों यूज होता है। और ये सारे जो भी आपके सामने लाया हूं मैं, सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज लाइक स्टैनफोर्ड वगैरह सब जगह चीजें पढ़ाई जाती है, इवन मोदी में भी ये चीज पढ़ाई जाती है। तो आप इस चीज पे थोड़ा फोकस करिए और ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप आगे, फिर आपको अपनी टीम को ट्रेन करना है इस पर्टिकुलर चीज पे, फिर आपको प्रोसेस क्रिएट करना है प्रॉपरली, ठीक है, और उसको यहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है, जैसे जैसे आप करो। मॉनिटर, अडेप्ट, स्केल, ये तीन बंदूकों की जो गोली होती है ना, इट्स जस्ट लाइक द थ्री बुलेट्स यू आर यूजिंग। You have to monitor, you have to adapt, you have to just scale again. Again you have to monitor, again you have to adapt, again you have to scale. Again आपको एक चीजें करते जाना है इन लूप में, और इवेंचुअली आप देखेंगे इट वाज द रियली इंप्रूव वन फॉर योर बिजनेस। चाहे बिजनेस है चाहे स्टार्टअप है, आप सबके लिए चीज बहुत ही अच्छे लेवल पे होगी, और आप अपने कंटिन्यूसली प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट साइकिल में चलते जाएंगे। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आप चीज देख सकते हैं। स्क्रम, जैसे मैंने आपको बोला एजाइल मेथोडोलॉजी में एक स्क्रम होता है। यहां पर क्या चीज है, आपको करना क्या, आपको प्लान करनी पड़ेगी हर चीज, ठीक है। यहां पर आपको तीन चीजों के बारे में जानना है, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, इंक्रीमेंट, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आप इसको कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट बनाते समय आपको पहले ये देखना है कि भाई प्रोडक्ट आपको डिजाइन कैसे करना है, फिर आएगी स्प्रिंट, ठीक है, एक टाइम में आपको कितना चीज डेवलप करनी है और कैसे कैसे आपको इंप्रूवमेंट करना है। इंक्रीमेंट मीन्स द इंप्रूवमेंट। तो आपको अपने प्रोडक्ट का पहले यहाँ पर पूरा ब्यौरा डालना है कि भाई हाउ योर प्रोडक्ट इज, व्हाट यू वांट टू इंप्रूव, और देन सबसे पहले तो यही चीज होती है, हम जानते हैं एक बहुत ही प्यारी टर्मिनोलॉजी सिलिकॉन वैली में बोली जाती है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट, क्या करना है, क्यों, वाई, क्यों करना है, हाउ, कैसे करना है, ठीक है, और व्हेन, कब करना है, ठीक है। और ये चीजें चलती जाती है आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। अगर ये चीज आप आइडेंटिफाई परफेक्टली कर देते हो, देन यू आर वेरी गुड टू गो फॉर योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल ही है, ठीक है। अब एआई इसमें कैसे यूज कर सकता है, दैट्स द बेस्ट थिंग। ये सारी चीजें आप एक बार रीड करोगे, इसमें सारी चीजें मैंने मेंशन करी हुई है, इट इज ऑल फॉर यू, राइट। तो इसमें सारी चीजें यूज करके आप अपने प्रोडक्ट के बेसिक तक पहुंच सकते हो, यानी अपने प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जो कि हमारा सेकंड पिलर था। अब यहां पर हमारा आता है तीसरा पिलर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। नाउ द थर्ड पिलर इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये शायद केस स्टडी आप सब जान भी जाओगे अगर मैं दिखाऊंगा तो। गूगल कल्चर, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, फॉर द कल्चर इट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो कल्चर के लिए आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो यार, आप किस कंपनी में वर्क करना पसंद करोगे, आप उस कंपनी में वर्क करना पसंद करोगे जिस कंपनी का कल्चर अच्छा हो, वहां पर आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, एक ग्रोइंग एनवायरनमेंट मिले। इवन आपको मैं सच्ची चीज बताऊं, मेरे ऐसे ऐसे कलीग्स को देखा है, आई हैव दैट मच ऑफ पर्टिकुलर पर्संस जो कि इवन दे आर इन आईआईटी बट दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज द थिंग्स आर नॉट गोइंग अप, लाइक they were really active in the college days, but when it comes to IIT, they are actually not particularly working in the growing stage. So they are actually lacking that thrill, and that thrill is actually important when it's come to any kind of business. When it's come to innovation, the thrill is important, right? So for that particular reason, we have taken this three pillar, which is third pillar, which is the culture. Culture important है। अब culture कैसे आप गूगल में कैसे देख सकते हो इस चीज को, देखो यार, culture के लिए what Google has done, Google has done one thing. Google has done a completely innovation cycle. Google has grow with Google their courses, right? It's free of cost. And grow with Google courses are there to improve their employee stability, to improve their employee performances. जैसे if we talk about any kind of university, we talk about Modi University, even there are faculty development programs, right? So it actually inculcated into the culture. तो culture important है यार, ठीक है, culture important है। और अब आप देख सकते हो गूगल ने क्या करा, गूगल ने क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे गूगल, उन्होंने कहा द फ्यूचर ऑफ योर बिजनेस इज बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग अप्लाइड टू द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड कंज्यूमर चैलेंजेस। इसका क्या मतलब समझ में आता है, वो आपको ये बता रहा है कि जो आपका फ्यूचर है इट इज ऑल अबाउट बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग। ये चीज अभी की नहीं है जो आपके सामने है, इट इज ऑफ अराउंड, आप मान सकते हो ये 5 से 6 साल पुरानी बात है, ठीक है। गूगल इस पे बहुत टाइम से वर्क कर रहा है एआई के ऊपर, और माइक्रोसॉफ्ट भी सेम बहुत टाइम से वर्क कर रहा है। सो यू कैन सी दैट the because of good culture, Google is growing really fast. We can see like what Sundar Pichai also told, we will evolve in
computing from mobile first to the AI first world. Yani Google was the remarkable search engine which we have all used in our childhood. We have all right now also we are using. You all know we have actually used this tool Google Trends right now. So what Google is working on, we know Gemini. Google has worked on Gemini framework, which is the AI first framework. So what Google is targeting, Google don't want to become a stagnant, or Google don't want to remain where it is right now. Google want to grow. Google want to explore different dynamics, working culture. Even if we talk about augmented reality, और अगर हम AR के बारे में बात करें तो वहां पर भी गूगल ने अपना AR कोर करके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स निकाले हुए हैं. तो गूगल इज वेरी मच इनटू द इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशंस. इंडस्ट्री 4.0 अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ वेरी ब्रीफली. इंडस्ट्री 4.0 आर दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस अब यहाँ पर आएगी, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, internet of things, drone technology, these all actually works under one roof, which is industry 4.0. पहले इंडस्ट्री 3.0 चलता था, बट अब नाउ द सिनेरियो इज चेंजिंग, राइट? वी हैव डिफरेंट थिंग्स नाउ. हर दिन there are different AI models are emerging. Right now, you can see like GPT-4o was there, and now the Tencent T1 has came. Microsoft Copilot is also emerging. Grok at X is also emerging. And there is one cloud AI also. There are many AIs here in the market. But what is best for you, that actually matters the most, right? And this is also we will be figuring out in this session only. So be with us for that, okay? Google pushed teams to revamp their product and services to be AI powered, and we all know कि अब सर्च इंजन में भी जनरेटिव एआई का यूज होता है. यू नो दैट जनरेटिंग पार्ट कम्स, दैट एक्चुअली इज द जनरेटिव एआई, और गूगल इज एक्चुअली inculcating the generative AI in everything. I will just show you, right? It will be very easy if I will show you to you. So I hope the screen is visible, right? So now the screen is visible to you. This is a Google trend only, right? So now we'll be working at the Gemini. Let's explore Gemini. Gemini is completely Google artificial intelligence और Google LLM. LLM is large language model. LLM को आप ये समझ सकते हो जैसे चैट जीपीटी है, क्लॉड है, ये सारे LLM है, which is large language model. लार्ज मीन्स बड़े, लैंग्वेज यानी जो हम यूज करते हैं इंग्लिश हिंदी हमारे जो लैंग्वेज है, मॉडल यानी वो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस के ऊपर ट्रेन हुए हुए मॉडल्स हैं. अब लैंग्वेजेस में सेंटेंसेस भी होते हैं, लैंग्वेजेस में पैराग्राफ्स भी होते हैं, नॉलेज होती है, उसके ऊपर अगर हम किसी को ट्रेन करें, लेट्स इमेजिन ये एक छोटा बच्चा है, इस छोटे बच्चे को अगर आप बहुत सारा नॉलेज दे देंगे ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप तो ये बच्चा इसमें ट्रेन हो गया. अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर देगा, जस्ट लाइक दैट दिस एक्चुअली वर्क्स. ठीक है, आगे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, बट उतना ही बताऊंगा जितना आपके काम का, बिकॉज यू हैव टू मेक इट इम्प्लीमेंट, राइट? सो यहाँ जेमिनी आपके सामने है, तो अगर मैं इसको एक सिंपल चीज बोलूं, क्रिएट एन टेबल ऑफ ऑल दी, let's talk about any particular thing, right? If we talk about, let's take a list of drones, right? Table of all the drones available in the market according to their price and features. ठीक है, करेक्ट. मैंने इसको एक बहुत सिंपल चीज दी, और अब ये देखते हैं क्या करते हैं. सो व्हाट जेमिनी इज डूइंग हियर, आप खुद देख रहे हो कि गूगल ने अपनी खुद की चीजों को कैसे बनाया. जैसे इसने कहा कि अनफॉर्चुनेटली प्रोवाइडिंग ऑल मार्केट जो इज नॉट फिजिबल, तो उन्होंने कुछ मेरे को ओवरव्यू दे दिया जो कि अभी मेरे लेटेस्ट के हिसाब से काम का है, राइट? अब आप यहाँ देख सकते हो एक बटन है एक्सपोर्ट टू शीट्स. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे पता है क्या होगा, सीधा ये आपको लेके चला जाएगा गूगल शीट्स के ऊपर. ये देखो ओपन शीट्स का ऑप्शन है, यू विल सी एंड यू विल गो. आप देख सकते हो शीट आपके सामने, हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग. That's the generative AI which is in the market, and we all know that this is the single thing which we can, it's an example, right? Like we have just seen that Google is integrating AI across its application. This is the practical example of this, right? How Google is actually working. So that's how the generative is actually changing the scenario. Like here is the try Gemini. Here you can see one button. You can just click here, try it out. You can just see. So here comes the good part. Google One is a subscription. Don't go there.
So there you can just explore the different dynamics, right? Here you can see and you can just talk to him, right? If you want to work on a product research, अगर आपको research करनी है किसी product को लेके, let's talk मेरे को cricket की company खोलनी है, तो I can just tell like you are my agent and you will be helping me in figuring out the cricket brand I want to create. Now generate the possible names and by compiling all the data and research available on internet, give me the regions to target. राइट, अब हम इसको पूछ रहे हैं सारी चीजें, आप ये देखते क्या करता है, ठीक है, क्या ये कर पाएगा, क्या लगता है? ऑल राइट, तो इसने अपने आप को ये माना, दिस नोन एज पर्सोना मेथड। पर्सोना मतलब हमने उसको एक चीज बोली कि भाई तू ये है, तो उसने मानी, राइट? So now it actually given me some names like Wicket Warrior, Crease Commander. That actually I liked. Crease Commander, Strike Wave, Power Play Pro. Now you have to figure it out what the easy to speak. क्योंकि देखो मार्केटिंग में the thing comes is the easiness. कितनी वो ब्रांड easy to remember है, कितना वो easy to speak है, right? Like if we talk about Google, Google is very easy to speak. Microsoft is very easy to speak. Have you listened about some different company which name is very difficult to speak? You will not remember, right? Reliance is very easy to speak. Like this particular thing, you have to remember. Like if we talk about Apex Cricket Academy is already there. Zenith Cricket, if I talk about this, and if I talk about now, it will giving me the regions which I can target. Okay. Now, if I want the list of it, give me the region list in Google in tabular format. Let's talk about in tabular format with appropriate columns, right? I've actually written wrong spelling, no problem. Let's see what it gives me. So you can see it is generating, okay? Okay, so it's so is this particular thing is known as hallucination, which means कि जब आपका मॉडल फेल हो जाता है किसी चीज को करने में, generate it again. Let's talk. Give me the limited columns. Maybe this works. Okay, so आप देख सकते हो now it is actually generated because of the column thing. It is actually giving me the hallucination part, but you can see इसने अब पूरा मेरे को दे दिया, but इसने मेरे को दिया क्या है, नाम की लिस्ट दी है. I want regions. I want of regions, not नाम के नीचे मेरे को, ठीक है. तो ये आप देख सकते हो बेसिक इन्होंने मेरे को पूरी चीज दे दी, राइट, कि आप क्या टारगेट कर सकते हो. आप यहाँ से सीधा एक्सपोर्ट शीट्स में कर सकते हो. तो इट्स अ वेरी इजी थिंग, ठीक है. अब हम आते हैं वापस हमारी प्रेजेंटेशन पे, ठीक है. तो यहाँ हमने चीजें देख ली है, राइट, कैसे गूगल एआई को यूज कर रहा है अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस में. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फ्रेमवर्क आता है जिसको कहा जाता है क्वार्टर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल, जो कि आप कल्चर में इंप्लीमेंट करवा सकते हो. अगर आप बिजनेस ओनर हो, इफ यू वांट द ग्रोथ, आप इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करा सकते हो. फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन अर्जेंसी. आपको अपने पूरे बिजनेस का जो कल्चर है, जो लोग हैं, उनके बीच में एक अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी. देन आपको एक पावरफुल कोएलिशन क्रिएट करना पड़ेगा. देन यू विल हैव टू क्रिएट अ विजन और स्टेटमेंट टू चेंज. आपको एक स्टेटमेंट, जैसे गूगल ने बोला कि वी हैव टू क्रिएट एआई पावर्ड एप्लीकेशंस और वी हैव टू इंप्रूव अवर एप्लीकेशंस टू द एआई पावर्ड थिंग, राइट. ये इंपॉर्टेंट है. देन आपको अब कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ एक्टिविटीज लेनी है जिससे आपका कल्चर एनहेंस हो, राइट. यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस अमॉन्ग योर कल्चर, राइट. जैसे गूगल ने किया हुआ है. एक आपको स्टोरी बताता हूँ. लाइक देयर वाज वन स्टोरी इन विच द टू गूगल इंजीनियर्स आर जस्ट कन्वर्सेटिंग विद ईच अदर. दे आर एक्चुअली टोल्ड, उन्होंने कहा यार कि जो ये जो गूगल का बियर ग्लास आता है, बियर ग्लास वाला एमोजी है, उसके अंदर बियर पूरी फुल नहीं थी बट झाग ऊपर की तरफ था. तो वो उन्होंने जाके ये चीज बोली अपने मैनेजर्स को. तो मैनेजर ने बोला कि वी डोंट एक्चुअली सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स यूजफुल, सो यू कैन जस्ट गो. बट एक बार सुंदर पिचाई की नजर में वो लोग आए. सुंदर पिचाई ने उनको बुलाया और उनको बकायदा उन्होंने अवार्ड तक दिया, ठीक है, कि दैट यू हैव इम्प्रूव्ड अवर इमोजी.
सो दिस पर्टिकुलर थिंग्स एक्चुअली हेल्प्स यू टू इंप्रूव योर कल्चर, जहां पर आप कंपटीशन कर रहे हो टू इंप्रूव, नॉट टू एक्चुअली वर्क एज अ क्रैप माइंडसेट। आप किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं कर रहे हो, किसी को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, राइट। सो ये आपके सामने चीज है। देन आपको उस पर चीजें बिल्ड करनी है और उसके ऊपर आपको इस साइकिल की तरह वर्क करना है, देन इट्स एक्चुअली वर्क्स, राइट। यहाँ हम फोर्थ पिलर पे अब हम आएंगे, एंड दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, विच इज द प्रॉफिट। पैसा इंपॉर्टेंट है यार। और पैसा कहाँ से आ सकता है? इफ आई टॉक, यहाँ पर हम वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट हम पहले ये चीज जानेंगे कि यार प्रॉफिट कहाँ से आता है, कैसे प्रॉफिट आ सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे हम वर्क कर कैसे सकते हैं? कोई कुछ भी, किसी का कोई सजेशन या किसी का कुछ ऐसा आइडिया है कि हाउ वी कैन इंप्रूव ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? पहला, बहुत बढ़िया, पहला आपका क्या सजेशन है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सबसे पहली चीज क्या है? यू कैन एक्चुअली रिड्यूस योर मैन पावर, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ये करा जा सकता है, बट ऑन द स्टेज कि आपका लॉस नहीं हो क्वालिटी का। दूसरा, क्या कुछ ऐसे अल्टरनेटिव तरीके निकाले जा सकते हैं इसमें मिडिल मैन का कम इन्वॉल्वमेंट हो? ये इसके साथ ही है, ठीक है, इस फर्स्ट पॉइंट के साथ ही चल रहा है। तीसरा, क्या हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए? आज हम सपोज एक आदमी का ही काम कर रहा है, बट अगर एक टेक्नोलॉजी लाई जाए तो 100 का काम हो जाएगा, तो पूरे 24 आवर्स मेरी कंपनी रन हो सकती है। वी कैन थिंक। फोर्थ इज टाइम। टाइम इज एक्चुअली मनी, राइट। समय ही पैसा है, ठीक है। आज अपना 1 घंटा यहाँ दे रहे हैं, देन इट्स एक्चुअली योर योर 1 आवर इज वेरी क्रूशियल। दैट्स वाई हम आपके लिए इंप्लीमेंटेशन वाली चीजें भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कि आपका वो 1 घंटा इज यूजफुल फॉर यू, राइट। सो यहाँ पर द थिंग इज, पहला आप ये देख सकते हैं कि कस्टमर्स टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में एआई को यूज करने के बाद कितना बढ़ चुका है व्हेन इट्स कम टू वॉशिंगटन पोस्ट। वहीं पर यूनिट पर मार्जिन देख सकते हो आपकी, चलो वहां पर थोड़ा सा इशू आया, ठीक है, यूनिट पर मार्जिन, ये भी चीजें वैसे बड़ी तो है ही है, बट द थिंग इज यहाँ थोड़ा सा इशू आ गया। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इन्होंने किया क्या। तो इन्होंने क्या करा, एक अपना खुद का एआई मॉडल बनाया, और उस एआई मॉडल का नाम था हीलियोग्राफ, ठीक है। अब इन्होंने हीलियोग्राफ बना के क्या करा, जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट की मदद करी, जिससे इलेक्शन और स्पोर्ट्स के बारे में वो अच्छा लिख सके, क्योंकि ये अखबार फेमस इन दो चीजों के लिए ही है, राइट। तो इसके लिए उन्होंने एक एआई मॉडल बनाया, जिससे अब हुआ क्या, ह्यूमन राइटर्स जो ज्यादा थे वो ज्यादा फोकस करते थे आर्टिकल लिखने में, नहीं, इन्वेस्टिगेशन में। लोग कहते हैं ना एआई रिप्लेस कर देगा, कुछ भी चीज को रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं होता है। एआई एक्चुअली हेल्प्स यू। उसने वो टाइम कम कर दिया ना आर्टिकल लिखने वाला, आर्टिकल लिखने वाला टाइम कम हो गया, जिससे इन्वेस्टिगेशन बढ़ गई, राइट। तो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट इंप्रूव हो गया। सो दिस एक्चुअली वर्क्स हियर, ओके। तो लाइक दिस वी कैन गो फर्दर, ओके। ओके, तो यहां पर 4 पिलर्स ऑफ चेंज आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे वर्क हुआ। जैसे हमने देखा कि पीपल, ब्रांड मार्केटर्स और डिजिटल मार्केटर्स की अलग जॉब की रिक्वायरमेंट होती थी, बट यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट आ गए, मैनेजर्स आ गए, राइट। अब हम उस कमर्शियल चीज से हटके मैनेजमेंट की पोजीशंस पे आ गए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, और वहां पर आ गए। प्रोसेस में आप एक कैंपेन रन कर पाते थे, बट एआई के आने के बाद अब आप एजाइल को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मेट्रिक्स को यूज करके प्रोसेसेस रन कर रहे हो। कल्चर में आप पहले इंट्यूशन या आपके हिसाब से डिसीजन लेते थे, बट अब आप टेस्ट करके सीख के लोगों से डेटा के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, और इससे आपकी स्पीड भी बनी हुई रहेगी। प्रॉफिट, बिगर मार्जिन, लोअर वॉल्यूम। यहाँ पर मार्जिन तो छोटा हो गया, बट वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि हमारा एरिया बढ़ गया और टाइम करने की कैपेसिटी बढ़ गई। तो यहाँ पर हमारे 4 पिलर्स पूरे होते हैं, और यहाँ पर हमारा पहला जो फेज है वो कंप्लीट होता है, राइट। एंड इट एक्चुअली टेकन 25 मिनट्स फॉर दिस, बिकॉज कि ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू गो एवरीवेयर, अगर आप इंटरव्यूज में भी अटेम्प्ट करोगे इस चीज को, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, बिकॉज दीज पिलर 4 पिलर्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम आगे चलते हैं, विच इज द जनरेटिव है, हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप उतना टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, बट इफ यू आर इन एआई, देन इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दी एनकोडर एंड डिकोडर पार्ट, राइट। सो आई विल गिव यू ब्रीफ और वेरी इजी एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम। सो आई होप दैट स्क्रीन इज विजिबल टू यू। सो यहां पर अब हम बात करेंगे एनकोडर डिकोडर की, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। सपोज, लेट्स टेक एग्जांपल, दिस इज वन बेंच in front of you. This is one bench. Here, two persons are sitting. One is innovator, and one is someone who always questions, who doesn't think everything is positive.
who maximize talk about the negative part, right? जो ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही करनी है, ऐसे बहुत लोग आपके आसपास भी होते हैं, राइट? अब इसने सपोज कोई एक आइडिया निकाला कि आई कैन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, कोई एक आइडिया इसके दिमाग में आया, इसने आइडिया इसको बताया। जैसे ही इसको बताया, एक एग्जाम्पल श्याम ले लेते हैं इसका नाम, और इसका नाम राम ले लेते हैं। तो श्याम एक्चुअली टोल्ड हिज आइडिया टू द राम कि भाई आई वांट टू स्टार्ट अ क्रिकेट कंपनी, ओके। तो राम ने कहा ठीक है, बट तू करेगा कैसे, राइट? करेगा कैसे? तो ये गया, इसने सोचा मैं करूंगा कैसे, फिर इसने कुछ आइडिया निकाला, फिर इसने आइडिया इसको दिया, जिस द वन साइकिल, एक पूरी हो गई, अब देखो दूसरी साइकिल, फिर इसने इंप्रूव करके इसके पास आया कि भाई मैं ऐसे करूंगा, फिर यहाँ पर इसने इसको बोला, या दूसरी साइकिल पूरी हो गई। अब इसने बोला भाई कि तू ठीक है शुरू तो कर देगा, ये चल तेरा स्टेप ठीक है, बट पैसा कहाँ से लाएगा? शुरू करने के लिए पैसा तो चाहिए, भले ही तेरा प्रोसेस स्ट्रांग है। आई टोल्ड यू द फोर्थ, जो पहला पिलर था अपना, ठीक है, जो लास्ट पिलर अपने डिस्कस करा प्रॉफिट, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसने फिर से वो फिगर आउट किया, फिर इसने बोला देख मैं प्रॉफिट ऐसे लेके आऊंगा। फिर इसने कहा कि अच्छा तू प्रॉफिट तो लेके आ जाएगा, मार्केटिंग कैसे करेगा, चल बता मेरे को मार्केटिंग तू कैसे करेगा। तीसरी साइकिल पूरी हो गई। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीजों से क्या हो रही है, साइकिल चलती जा रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि जो पहले शाम के पास आइडिया था, और अब कम से कम अगर ऐसी 50 साइकिल्स रिपीट हो जाए, अब शाम के पास जो आइडिया है वो ज्यादा पावरफुल होगा? आपको नहीं लगता ये चीज? यस यू आर करेक्ट गाइस, इट इज पावरफुल, क्योंकि अब वो जो कमियां उसमें पहले थी, दैट एक्चुअली पूरी हो चुकी है, राइट? तो अब वो पावरफुल हो जाए। गिव मी 1 सेकंड। ओके, सो थैंक यू फॉर, थोड़ा बीच में इश्यू आ गया था। सो नाउ वी कैन अगेन फोकस ऑन द सेम थिंग। तो यहां पर आपको पता है कि जिसका आइडिया और रिफाइन हो गया, तो इसको मैं टर्म दे सकता हूं, ठीक है, इस चीज को मैं टर्म दे देता हूं जनरेटर। आई कैन टॉक अबाउट जनरेटर। और इसको मैं एक टर्म दे सकता हूं विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेटर, क्योंकि ये हर बार क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है इसके आइडिया को। और ये अगर मैं आपको कहूं कि जो मैंने आपको पूरी चीज बताई, ये ही चैट जीपीटी है। You have actually understood the behind architecture of ChatGPT, which is of generator and discriminator. आप सबने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पूरा कर लिया चैट जीपीटी का। ऐसे ही चैट जीपीटी वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, राइट? तो ये आपके सामने पूरा मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दी चीज। अब आप कहोगे यार ये एनकोडर डिकोडर क्या चीज है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ऑल्सो। एग्जाम्पल लेते हैं यार, एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल मैं लूंगा आपके सामने, छोटा सा, इट विल टेक 2 मिनट्स। अगेन एक वन एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल इज, सपोज मैं लिखता हूं गिव मी आईपीएल, इट्स अ ब्लैंक स्पेस। ये अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो क्या होता है? अगर आप ये गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता है आगे आपके पास नीचे कुछ आंसर्स लिखे हुए आ जाते हैं कि भाई गिव मी आईपीएल स्कोर, लेट मी करेक्ट इट, राइट? गिव मी आईपीएल विनर 2024, गिव मी आईपीएल ट्रॉफी प्राइज। बहुत चीजें आ जाती है, एक्स वाई जेड, देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स कम्स, राइट? तो ये कैसी चीज वर्क होती है, कभी सोचा ये फिल इन द ब्लैंक क्यों है यहाँ? देखो गाइस, ये कैसे वर्क होता है, दिस एक्चुअली नोन एज नेव अप्रोच। नेव अप्रोच यानी हम इंटरनेट पे जितने भी ज्यादा सेंटेंसेस है उन सबको यूज करके पता लगाते हैं कि भाई ये चीज क्या हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो सकता है। बट यहां पर एक अप्रोच है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है। वो अप्रोच क्या है मैं बताता हूँ। देखो, सपोज अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, मैं सपोज इसको नंबर देता हूँ। सपोज ये, अगर मैं 10 की स्केल लेता हूँ एग्जाम्पल, तो ये मेरे लिए सपोज 2 नंबर ज्यादा इतना ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। मी में मेरे को सपोज थोड़ा ज्यादा, आईपीएल मेरे को 8 के करीब इंपॉर्टेंट लग रहा है।
ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो चीज हो गई। अब बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, सीक्वेंस के बेसिस पे अगर हमारा ये जो चीज है, जो तीसरी चीज है, क्या होनी चाहिए, वो प्रिडिक्ट होती है। कैसे? बहुत सारे लेटर्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं, और उनके स्कोर के हिसाब से कि भाई सबसे प्रिडिक्टिव यहाँ चीज क्या हो सकती है, अपना आप स्कोर लिखा हुआ आ जाए, जो कि आजकल एआई में होता है, वो ऐसे ही वर्क होता है। इनकी एक की होती है, इसको की कहा जाता है, की। और फिर होती है वैल्यू। वैल्यू बताती है लोकेशन, कि इस सेंटेंस में वो चीज कहां पर आएगी। बेस्ड ऑन की है वैल्यू, इनके सबमिशन के बेसिस पे एक स्कोर निकलता है। ठीक है, इनके सबमिशन के हिसाब से इनका एक स्कोर निकलता है, और उसके हिसाब से ही हमें पता लगता है नेक्स्ट क्या आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। कोई भी सेंटेंस है, गिव मी, सपोज कुछ भी हो सकता है। अब मी हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है, अब सपोज इसका स्कोर 7 है। अब मी के साथ बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, बट हम ये देखेंगे मी लोकेटेड कहाँ पर है। सपोज मी हम बीच में लोकेटेड, हमें पता है बीच में है मी, तो हम इसको पता लगाएंगे नेक्स्ट क्या आएगा। राइट, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये एआई करता है, प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट क्या आएगा। ये इस अप्रोच को कहा जाता है सीक्वेंशियल अप्रोच। ये टर्म्स आपके लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ के लिए या जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियल अप्रोच एंड नेव अप्रोच। और यही चीज पे वो चीजें वर्क होती है। अब ये जो आंसर कैसे आता है, बाय डी कोडिंग। किसको डी कोडिंग करनी है? जो की प्लस वैल्यू का रिजल्ट आता है हमारे पास, रिजल्ट, वो एनकोड होता है। और उस एनकोड को ही क्या किया जाता है, डिकोड करके पता लगाया जाता है नेक्स्ट क्या आएगा। जैसे मैंने वहां पर लिखा था एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, यही जनरेटिव एआई है गाइस। आप लिखते हो ना गिव मी द मार्केटिंग प्लान फॉर दिस, तो ऐसे ही जनरेट करता है। तो चलो, ये तो बात हुई, थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट हम चले गए, बट अब हम वापस आएंगे हमारी मेन चीज पे। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं और थोड़ा चीज और देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई कंज्यूमर एंगेजमेंट और मार्केटिंग ने आज तक हमें कितना सहायक दिया है, कितने हमारी मदद करी है, वो आपके सामने चीज है। लाइक वी ऑल कैन सी कि अगर हम Amazon प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की बात करें, राइट, Amazon के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो Amazon की प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा, रिकमेंडेशन का बिजनेस आप मेरे से लिखा लीजिए, एंड इफ यू टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर, इट इज $1 billion बिजनेस इन अपकमिंग 5 years। कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर लगता है, यू कैन क्रिएट अ रिकमेंडेशन साइकिल फॉर दैट, राइट। सेकेंड कहां पर यही यूज होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन। देखो, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, यू हैव टू यूज वेयर यू रिक्वायर, राइट। कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन कहां देखने को मिलते हैं, स्पॉटिफाई गाइस। स्पॉटिफाई में आपके ऊपर चीज लिखी हुई आती है ना भाई, कि भाई आपके लिए एक अलग सी प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कि प्ले स्पेशल प्लेलिस्ट फॉर यू, रॉकिंग प्लेलिस्ट फॉर यू, ठीक है, जैज प्लेलिस्ट फॉर यू। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच कम्स ऑन स्पॉटिफाई। सो यहाँ पर कस्टमर सेगमेंटेशन यानी डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे तमिल ऑडियंस है तो वो क्या सुनेगी, हिंदी ऑडियंस है तो उसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो वो कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया। अब आता है कंटेंट जनरेशन। अब यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, देखो मार्केटिंग में आपको पोस्टर जनरेट करना है, यू हैव टू क्रिएट योर प्रेजेंटेशंस, यू हैव टू क्रिएट द वेबसाइट्स, और इन सब के लिए कंटेंट जनरेशन यूज होता है, राइट। वॉशिंगटन पोस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। चैटबॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 24/7 लोग साइट पे आते हैं। आप अगर ये SIN की साइट पे भी आओगे, यू विल सी अ चैटबॉट, इट इज देयर। चैटबॉट क्या करता है, चैटबॉट एक्चुअली में कम्युनिकेट करता है आपकी क्वेरीज में, क्योंकि आप 24/7 नहीं रह सकते आजकल। ब्रिक एंड मोटार स्ट्रेटेजीज नहीं चलती। ब्रिक एंड मोटा मीन्स वो स्ट्रेटेजीज नहीं चलती जिसमें आपको पूरे बिजनेस का एरिया में आप बैठे हो और काम हो रहा है। आजकल डिजिटल डिजिटल चीजें वर्क होती है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो आपको एक आदमी वहां पर चाहिए ही चाहिए। व्हेन इट्स कम टू मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। बफर इज द वन ऑफ द टूल। अगर आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपको रिलीज करना है, तो आप बफर यूज कर सकते हो। बफर इज द बेस्ट टूल विच यू कैन यूज। ठीक है, ईमेल ऑप्टिमाइजेशन आप यूज कर सकते, तो ग्रामरली के अंदर आप देख सकते हो, बहुत आप यूज करते ही होंगे, आई एम होप। अब तो गूगल ने खुद का भी अपना ईमेल ऑप्टिमाइजेशन की चीजें निकाल दी है। आप कहते हैं ना टैब करो तो अपना आप गूगल जनरेट कर देगा आपकी ईमेल। पर्सनलाइज इंजन्स, नेटफ्लिक्स अपने शो रिकमेंडेशन करता है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, ये सारी एआई का इन्वॉल्वमेंट बताती है मार्केटिंग के लिए, राइट। तो इट्स दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। रियल लाइफ में आप इसको कहां देखते हो, नेटफ्लिक्स में आपने देखा है, ठीक है। अमेजॉन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, अगेन कोको कोला। देखो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोको कोला अपने कितने कैंपेन्स के लिए फेमस है, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई नाम लोग जानते हैं, एक सर्वे हुआ तो वो कोको कोला है।
अब वो क्यों जानते हैं, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, तब हम अपने प्रोडक्ट के लिए डेवलप कर सकते हैं। इफ यू नो दैट प्रोडक्ट देन वी कैन डेवलप फॉर आवर प्रोडक्ट, राइट। तो कोको कोला की अगर हम जनरल ओवरव्यू से बात करें, तो कोको कोला करता क्या है? कोको कोला, आप जानते हो, ड्रिंक्स क्रिएट करता है, तो वो पूरा डेटा ड्रिवन है। आप देखते हो कोको कोला ने कितने कैंपेन्स रन किए थे बीच में। आप, कोको कोला टारगेट किसको करता है? अगेन हम 4 पिलर्स पे ही पूरी बात होगी दोस्त। पीपल किसको टारगेट करता है? कोको कोला यूथ को टारगेट करता है, तो उसके सारे एड और सारी चीजें यूथ के अराउंड होगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका प्रोडक्ट बिकने से पहले आपकी स्टोरी, योर ब्रांड एक्चुअली पहले सोल होता है, ठीक है, सेल होता है। योर स्टोरी एक्चुअली सेल फर्स्ट। स्टोरी बिकेगी, प्रोडक्ट बाद में बिकेगा, हमेशा ध्यान रखना। प्रोडक्ट बेचने मत जाओ, स्टोरी बेचने जाओ, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। एंड इट्स द कंपल्सरी थिंग, ठीक है, दोनों साथ में चीजें होती है। सेफोरा वी ऑल नो, प्रोडक्ट सजेशंस के लिए आपकी स्किन टोन को मैच करने के लिए यही वो यूज करता है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो। और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी एआई क्रिएट करता है। यहाँ पर कोको कोला की एक बात मैंने भूल गया, अभी मेरे जस्ट आंखों के सामने आई, विच इज कि सोशल मीडिया के इंटरेक्शंस को एआई स्टडी कर रहा है। यानी इंस्टाग्राम में लोगों ने क्या कमेंट किया है, फेसबुक पे क्या कमेंट किया है, कस्टमर सिग्नल देता है। और बेस्ट कंपनी वही है जो सिग्नल को पकड़ के प्रोडक्ट बना देगा। कस्टमर सिग्नल देगा, कस्टमर बोलेगा नहीं, कस्टमर ऑलवेज गिव्स यू द सिग्नल। आपका काम है प्रोडक्ट बनाना, और जहां पर वो कस्टमर है सही टाइम पे सही प्रोडक्ट सही समय लेके चले जाओगे बेस्ड ऑन दैट सिग्नल, वो ही आपके लिए मेन चीज है। वहीं पर ही कोड डिकोड हो जाएगा पूरा। आप सब एक अच्छी अर्निंग चाहते हैं, आप सब एक अच्छी चीज के लिए चाहते हैं। बिजनेस इज नॉट समथिंग दैट आपको फुल टाइम पूरा बैठना जरूरी है, एआई को यूज करके उसका पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। दैट्स द थिंग। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करेंगे, विच इज द मार्केटर एक्सरसाइज, डिजाइन योर ओन मार्केटिंग कैंपेन। अब यहाँ पर अगेन हम हमारा खुद का मार्केटिंग कैंपेन बनाएंगे। अब आप कहोगे कैसे बनाओगे भाई, क्या करोगे? तो हमें मार्केटिंग कैंपेन बनाने के लिए इस फनल की इंपॉर्टेंट है, और यही इस पूरे सेशन का सबसे ग्रेटेस्ट पार्ट है, ठीक है। अगर आपको अब मार्केटिंग फनल अपना क्रिएट करना है, तो आप वो कैसे करेंगे? ये इस पूरे सेशन का हार्ट है, आप ये समझ सकते हो। और इसका उस ड्राइव के अंदर मैंने पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक्शन प्लान दिया है आप सबके लिए। तो पहले हमें क्या करना है? कस्टमर की डिमांड को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ योर कस्टमर डिमांड इज, व्हाट योर कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड समझनी पड़ेगी। कस्टमर सर्च क्या कर रहा है, कस्टमर कितने टाइम तक किस कंटेंट पे अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कस्टमर गूगल पे क्या सर्च करता है, सोशल मीडिया पे किसको फॉलो करता है, सोशल मीडिया पे उसका कितना एंगेजमेंट, किस टाइप की रील्स पे ज्यादा है। ये सारी रिसर्च करनी पड़ती है गाइस। इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च। पहले आप रिसर्च करोगे, जब आपकी एक बार रिसर्च हो गई, फिर आप क्या करोगे? अपने ऑडियंस को डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में तोड़ोगे कि भाई आपका मार्केट को तोड़ना पड़ेगा, सेगमेंट करना पड़ेगा कि भाई बेस्ड ऑन क्या डिमांड में किस मार्केट को या किस ग्रुप को टारगेट करूंगा। एक बार ये हो गए, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है। इट इज रिटन देयर, यू हैव टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस बेस्ड ऑन योर कस्टमर सेगमेंट। आपने सेगमेंट कर दिया, उसके बेसिस पे अपनी ऑडियंस डिसाइड करो कहाँ टारगेट करना है। अब सेगमेंट कैसे कर सकते हो? इंटरनेशनल मार्केट अलग बना दिया आपने, वर्ल्ड मार्केट अलग बना दिया, ठीक है। तो वो चीज मैटर करती है। फिर उसमें उस मार्केट में अंदर अब आप किसको टारगेट करो? एक मार्केट में बहुत टाइप की ऑडियंस होती है भाई। अगर आप अगरबत्ती बेचने जा रहे हो, इफ यू वांट टू सेल द इंसेंस स्टिक्स, देन आपको उसके लिए डिफरेंट मार्केट के लिए टारगेट करना पड़ेगा। आपका मार्केट या टारगेट ऑडियंस होगी वो एक्चुअली गोज टू दी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, दैट काइंड ऑफ थिंग विल बी योर टारगेट ऑडियंस, राइट। तो वो आपको डिफेंड करना पड़ेगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आपको डिजायर्ड फीचर्स निकालने पड़ेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर सिग्नल देता है। और बढ़िया कंपनी वही है जो प्रोडक्ट बना देता है। तो वही चीज, अब आपको सिग्नल पता लगाना है, डिमांड पता लग गई, ठीक है। फीचर क्या कस्टमर चाह रहा है कि भाई आप अपने आसपास देखो। बेस्ट चीज होती है यू नोटिस योरसेल्फ, अपने आसपास देखो और उसके हिसाब से चीज करो। फिर अंडरस्टैंड करो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को कि भाई कितने कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी वो काम करें, उनसे भी सीखो, ठीक है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, राइट। फिर राइट कीवर्ड सेलेक्ट करो, और फिर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट कीवर्ड, कि भाई आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, तो आप उस किस कीवर्ड पे क्या सर्च करती है आपकी वेबसाइट आ जानी चाहिए, वो भी बहुत मैटर करता है। टॉप कितनी आ रही है, सपोज हम बेस्ट क्रिकेट कंपनी सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट आती है क्या? बेस्ट एआई कंपनी सर्च करते हैं, आपकी वेबसाइट आती है क्या? हम भी इस पे वर्क कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं।
हर बिजनेस इस पे वर्क कर रहा है, और फिर देखो कि भाई मेरे लिए कौन सा एआई टूल मेरे लिए बेस्ट है और मेरे को क्या यूज करना चाहिए। यहां पर ही हमारा ये फनल कंप्लीट होता है। बट द थिंग इज, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा। तो हम वापस चलेंगे जेमिनाई पे, ठीक है। हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे और एक बेसिक चीज के ऊपर बात करेंगे। सपोज एक क्रिकेट का ब्रांड, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, वो अगर मेरे को बनाना है तो कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंट एआई के टूल्स या डिफरेंट एआई के मॉडल्स को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप चैट जीपीटी करना चाहो तो आप चैट जीपीटी कर सकते हो। लाइक मैं सर्च कर रहा हूँ चैट जीपीटी और इसको यूज करूंगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, जिससे एक डिफरेंट ओवरव्यू आपको डिफरेंट एआई मॉडल्स का भी देखने को मिले इस पूरे सेशन में, ठीक है। तो हम सबसे पहले आएंगे और इसका फ्रेमवर्क आपको ड्राइव में दिया हुआ है, वो ड्राइव लिंक के अंदर खोलो, उसमें ये फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब अपन इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, पहले हमें कस्टमर की डिमांड समझनी है, ठीक है। डिमांड समझते हैं तो अब यहां पर आप डीप सर्च भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। डीप सर्च है ये ऑन कर सकते हो आप, बट मैं इसको अभी बंद इसीलिए करके रख रहा हूं क्योंकि देखो द थिंग इज ये बहुत टाइम लेगा, एंड यू कैन डू मोर वंडर्स विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस, राइट। तो यहां पर मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं नाउ यू आर माई मार्केटिंग assistant and you will be assisting me in marketing, in designing marketing campaign, राइट। मैं इसको ये चीज देता हूँ। अब यहां पर क्या होता है, अब इसका जवाब आएगा कि यस यस यू कैन गिव मी, ऐसा कुछ कर सकता है, राइट। आई एम रेडी टू सपोर्ट यू, राइट। इसने मेरे को चीज बोल दी, इसने काफी चीज तो खुद भी बता दी अपने हिसाब से। तो मैं इसको लिखता हूँ कि नाउ सर्च अक्रॉस द वेब एंड फिगर आउट द कस्टमर डिमांड्स related to cricket, रिलेटेड टू क्रिकेट प्रोडक्ट या एनी क्रिकेट प्रोडक्ट। मैं किसकी कंपनी शुरू करूँ, एक बार शुरू करने के लिए आपको चीज एक चीज से शुरू करोगे ना, ऐसा थोड़ी ना पूरी क्रिकेट की कंपनी बना दोगे। क्रिकेट में भी क्या एकेडमी है, क्रिकेट के पार्ट्स आप बनाओगे, क्या चीज क्रिएट करोगे, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस, एंड ऑल्सो गिव मी एन प्रायोरिटी स्कोर। प्रायोरिटी स्कोर मैंने क्यों माना, जिससे मेरे को पता लगे मैं क्या चूज करूं, ठीक है। मैंने इसको दिया, अब देखते हैं क्या होता है। पूरे वेब के अक्रॉस सर्चिंग हो रही है, ठीक है। देखते हैं, इट्स अ फाइनल टास्क जो कि हम कर रहे हैं, तो यू विल बी लर्निंग मेनी थिंग्स। तो आप देख सकते हैं स्मार्ट एंड सेंसर एनेबल्ड इक्विपमेंट, कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड गियर, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, हाई परफॉर्मेंस प्रोटेक्टिव गियर्स, प्रीमियम क्रिकेट अपीयरल, ठीक है। फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स एंड एंगेजमेंट, स्ट्रीमिंग एंड डिजिटल कंटेंट सर्विसेज, यूथ एंड वुमेन्स क्रिकेट इक्विपमेंट, राइट। तो यहां पर आके सपोज भैया आज सपोज मेरे को ये चीज करनी है, स्मार्ट एंड सेंसर एनेबल्ड इक्विपमेंट मेरे को बनाना है, तो ये इसको अपन देंगे। ये आप नोट करेंगे कि भाई आपको क्या करना है पहले, कि भाई मेरे को स्मार्ट एंड सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट, क्रिकेट इक्विपमेंट बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये आपको प्रॉपर इंडस्ट्री में यही काम मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। इफ यू आर वॉचिंग, डोंट फील दैट इट्स डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्री, दिस इज एक्चुअली द इंडस्ट्री, दिस इज एक्चुअली वर्किंग इन द इंडस्ट्री, राइट। And that's the particular reason why these big companies of McKinsey, World Bank, they are actually, just it's a time of a recession, maybe it's a actually reason of the layoffs, जो layoffs हो रहे हैं, right। तो अब मैं लिख सकता हूँ equipments, what market I can target, क्योंकि अब नेक्स्ट चीज क्या है, सेगमेंट। तो प्लीज segment my market and suggest me some products for the same। देखते हैं क्या होता है। तो इसने क्या करा, क्रिकेट इक्विपमेंट के बारे में बताया, राइट। तो अब इसने मेरे को क्या बताया, इसकी भी एक मेरे को इसने लिस्ट दे दी कंप्लीट, कि भाई आप 13 से 25 की एज के अंदर जो स्कूल प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको आप ये चीज दे सकते हो, उनकी स्किल इंप्रूवमेंट और रियल टाइम फीडबैक मिल जाए, ऐसी चीज उनको कुछ बनाओ। आपको पता है मशीन, जो क्रिकेट मशीन है, उसमें बॉल्स अपने आप निकलती है, उसके सारे सेंसर्स रियल टाइम पे ट्रैक करते हैं कि उसने कितनी स्पीड से फेंका। देयर वाज वन रिस्ट वॉच भी है जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस ट्रैक करती है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं।
सेमी प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए आपको एडवांस और कॉम्पिटिटिव एज के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप कोचेस के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। आपको आइडेंटिफाई करना है आपको किस पे वर्क करना है। तो मैं इसको अगेन लिखता हूँ, बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड डिमांड हेल्प मी टू पिक आउट माय इंडस्ट्री। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, हर बार ये प्रायोरिटी वर्ड यूज करो। इट्स अ प्रायोरिटी टेक्निक, ये चीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली सारे रिसर्चर्स यूज करते हैं, जिससे मॉडल हेलुसिनेट भी ना हो। अब आप यहाँ देख सकते हो ये चीज कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। जैसे देखो, ट्रॉफी आ गई भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसने लिख दिया कि भाई इनोवेशन स्कोप कितना है। इसने मेरे को गिव, इट इज एक्चुअली गिविंग मी एंटायर थिंग, यू कैन जस्ट सीइंग राइट। स्मार्ट क्रिकेट इक्विपमेंट्स, स्मार्ट बैट्स। ठीक है, स्मार्ट बैट्स, राइट, इट्स अ बिग मार्केट, हमें पता लग रहा है। ठीक है, एनालिटिक प्लेट, फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अगर मैं अब ये चीज, इसने मेरा सेगमेंट करने में मदद कर दी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। जब मेरे को ये चीज पता लग गई, अब मेरे को मेरी टारगेट ऑडियंस पता लग गई। ठीक है, इसने सब चीजें बता दी। ऑल्सो एट दी एज ग्रुप एंड जेंडर कॉलम, देखते क्या करता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि अब इसने खुद ने इसको समझ में आ गया। यहाँ पर इस चैट जीपीटी का प्रॉपर यूज अपन कर रहे हैं टू डिजाइन आवर थिंग, राइट। तो ये इट्स अ कंप्लीट थिंग विच इज चैट जीपीटी इज डिजाइनिंग, यू ऑल कैन सी। ये पूरा इसने टेबल जनरेट कर दिया है। तो यहां से हमें पता लग गया कि भाई स्मार्ट क्रिकेट कंपनी, क्रिकेट इक्विपमेंट मैं बनाऊंगा विच स्मार्ट बैट, सपोज मैं बनाता हूं। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो मैंने लिखा दिस इज व्हाट आई विल बी चूजिंग। ओके, लेट्स करेक्ट इट। ठीक है, चूजिंग अपन ने कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इस फ्रेमवर्क के हिसाब से चलते जाओ। टारगेट ऑडियंस भी डिसाइड हो गई, मेरे को एज ग्रुप पता लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई दी डिजायर्ड फीचर्स एंड बेनिफिट्स। ठीक है, किसका, ऑफ दिस प्रोडक्ट, या इस प्रोडक्ट का ये चीज बताओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई इसका क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, स्मार्ट क्रिकेट इक्विपमेंट्स में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या बेनिफिट। अब ये देखो सब चीजें बताएगा। कैटेगरी स्मार्ट बेड सेंसर, तो भाई ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, डिजायर्ड फीचर्स, सब चीजें इसमें लिख दी देखो। वियरेबल और रिस्ट बैंड होगा तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। तो आपको अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कितनी अच्छी हो रही है, आप देख सकते हो। वैल्यूड फॉर बॉलर्स, कौन यूज करेगा, तो ये सारी चीजों में आपको मदद कर दिया। एआई पावर्ड मोबाइल ऐप जो कि सबसे कनेक्ट हो, बैट्स में कितना इंटेंसिटी से शॉट्स लगे हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसको मैं लिखूंगा, टेल मी दी कॉम्पिटिटर्स। अब मैं एक जो ट्रिक यूज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। टेल मी दी कॉम्पिटिटर्स हु आर यूजिंग और हु आर करंटली वर्किंग इन दिस स्पेस एंड ऑल्सो गिव मी दी challenges they are facing or problems with their product, and also provide me the improvement tips for my smart cricket equipment company। बेसिक चीज दी मैंने इसको, अब देखते हैं क्या होता है। नाउ अगेन यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग हियर। ठीक है, नाउ इट समथिंग वेंट रॉन, लेट्स सी। समटाइम्स इट विल गिव बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज एंड ऑल्सो, डोंट वरी, इसको वर्क। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आप ज्यादा सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट हो जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम यू कैन अगेन कम विद इट, राइट। जैसे स्ट्रेट एट बैट है, इसकी प्रोडक्ट ये है, आप यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, राइट। गिव मी दी डेटा इन फॉर्म ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट आपके बारे में सबको पता है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पर।
स्वॉट एनालिसिस से आपको सब चीजें पता लग जाएगी। ठीक है, इसको मैं रोकता हूँ एक बार के लिए और मैं इसको कहता हूँ स्वॉट एनालिसिस आप मेरे को दे दो। तो यहाँ जब ये स्वॉट एनालिसिस देगा तो आपके सामने एक बेसिक चीज, एक बेसिक चार्ट आपके सामने आ गया। अब जैसे इसने थोड़ा हेलुसिनेट किया है, गिव मी स्वॉट एनालिसिस फॉर माय कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो जब मैं ये लिखूंगा तो वो जो मेरे टॉप 4 कॉम्पिटिटर्स हैं उनका मेरे पास स्वॉट एनालिसिस आ जाएगा, राइट। तो जैसे स्टेट बैट है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, ठीक है, वीकनेसेस क्या है, तो वो सब चीजें मेरे को दे देगा। और इसको यूज करके मैं मेरा खुद का कैंपेन डिजाइन कर सकता हूँ। अब कैंपेन में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है, राइट कीवर्ड। कीवर्ड क्या चूज करोगे, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो कीवर्ड चूज करना, जैसे वीआर कोचिंग आप बना सकते हो, वीआर कोचिंग एप्स। वीआर में बंदा सीख रहा है क्रिकेट खेलना, यार देखो कहाँ तक चीज पहुंच गई है, राइट। तो there are things, okay, which are unknown to us, but आप when you will talk to GPT, when you talk to in this particular things, तो वो आपको बहुत मदद करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम आपसे ज्यादा लिया है, इट्स नाउ इट विल बी 5 मिनट्स मोर, बिकॉज हम इसको बस एंड करेंगे एक बहुत ही इजी चीज के साथ। और आपको अब कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, विच इज द एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड ये कीवर्ड्स को आप हर जगह यूज करोगे, अक्रॉस योर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब, your websites, everybody, every place you will have to use, right। तो अब हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई, तो आई विल जस्ट गिव हिम द प्रॉम्प्ट। अब इसको मैं, देखो ये कह रहा है आप यूज नहीं कर सकते अभी, अब चैट जीपीटी प्लस आप यूज नहीं कर पाओगे, आप चाहो तो नॉर्मल मॉडल यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा था टाइम पूरा होने पे ये चीज ऐसे ही करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूसरी चैट खोल सकता हूँ, ये सारा डेटा ले लेते हैं। लेट्स से कि मैं ये पूरा यहाँ से चीज लेता हूँ, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस, मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया। नाउ generate me an appropriate appropriate keywords to market my product and enhance my search engine optimization, राइट। तो आपने ये किया, तो अब क्या होगा, अब ये हेलुसिनेट हो गया, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे जनरल पूछता हूं तो गिव मी एन कीवर्ड्स फॉर स्मार्ट क्रिकेट equipment startup where we will be developing smart cricket products such as smart bats, smart wickets, let's take example wickets, and smart appeals, ठीक है। Let me correct this, again it's correct, okay। तो now give me the keywords, okay। तो अब देखते हैं कीवर्ड्स देता है नहीं देता है। तो अभी अपन को कीवर्ड्स अगर प्रोवाइड कर देगा दैट्स बेटर, तो हम नई चैट पर नहीं तो जाके कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बेसिकली रिसर्च करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको कीवर्ड निकलेंगे और दैट्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कि हमने यहाँ पर कीवर्ड्स ढूंढ लिए और अब उसके ऊपर ही हम मार्केटिंग, अब जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अब ऐसे आप उसको डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। अब ये कुछ कीवर्ड्स निकाल रहा है, लेट्स से कि ये कैसे क्या करता है, लेट्स वेट। Let me pause and generate it again. If it is giving me again and again same problem, you can generate like this. So यहाँ पर इसने मेरे को कुछ कीवर्ड्स दे दिए, राइट। मैंने यहाँ से नई चैट खोल के कर दिया, बिकॉज कभी कभी क्या होता है आपका डेटा ये सेव करता रहता है, ठीक है, अक्रॉस द थ्रेड्स। तो यहाँ पर आप नया थ्रेड खोल के उसमें नया प्रॉम्प्ट दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मेरे को कितने सारे कीवर्ड्स दे दिया। एंड ऑब्वियसली अभी मैंने कंपनी का नाम इससे जनरेट नहीं करवाया, आप कर सकते हो, आपको मैंने पहले करके वो चीज दिखा दी है। तो यहाँ पर हमारी पूरी चीज कंप्लीट होती है। और ये चीज आप कैसे नोट करोगे, मैंने आपको एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी दे दिया है।
यू कैन एक्चुअली सी इट वाया दिस। मैंने खुद को इस पूरे फ्रेमवर्क को भी फॉलो किया है आपके सामने। ये आपको बुकलेट है, ये पूरी मैंने ड्राइव का लिंक अभी मैं आपको वापस शेयर कर दूंगा। हियर यू कैन सी आप कैसे चीजें कर सकते हो। डिमांड समझी अपन ने, सेगमेंट किया, टारगेट ऑडियंस डिसाइड किया, फीचर्स एंड बेनिफिट्स पे बात करी, देन हमने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखा, राइट कीवर्ड्स जाने, ठीक है, और हमने एआई टूल्स को भी लेवरेज किया, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ठीक है। अगर आपको लोगो जनरेट करना है तो आई विल रिकमेंड आप माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के ऊपर जा सकते हो, ठीक है, वहां से आपको लोगो अच्छा मिल जाएगा। अगर आपको कुछ एआई रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करनी है तो आप अपना .ai पे जा सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे एआई टूल्स हैं अपने पास, ठीक है, जिस पे आप जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ पर हमने बेसिक चीजें देखी और यहाँ पर बुकलेट खत्म हो जाती है। तो ये आई होप आप सबके लिए बढ़िया था। इसके बाद एक और फ्रेमवर्क है विच इज द एआई ड्रिवन मार्केटिंग। ये आपको लिए एक्टिविटी है, ये आपको खुद एक्सप्लोर करना है। यहाँ मैंने सारी चीजें आपके लिए लिखी हुई है। ये चीज जो है ना, ये चीज उस पहले वाले फ्रेमवर्क के साथ साथ चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एआई के टूल्स को यूज करके कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने पूरी चीजें करी है। तो ये यहाँ पर शुरू होता है आपका अवेयरनेस स्टेज से, कैसे आपके लोग अवेयरनेस है, कितना आपके लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, कौन सुनता है समझता है, इंटरेस्ट कितने लोग उसके लिए इंटरेस्ट लेते हैं आपके प्रोडक्ट में। ये एक नॉर्मल फनल को हम और ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्लिक करते हैं उस पर, कितने लोग डिजायर करते हैं। ये आपको मैंने आपको क्या बोला था, स्टोरीज बिकती है, प्रोडक्ट्स नहीं बिकता, स्टोरी बिकती है, ठीक है। फिर एक्शन, कितने लोग एक्शन लेते हैं, कितने लोग एक्चुअली उसको परचेज करते हैं, ठीक है, और कितने लोग उसको आगे सपोर्ट करते हैं, यानी लॉयलिटी स्टेज, यानी आगो को भी रेकमेंड करते हैं कि भाई मैंने तो कर लिया, अब आप भी करो, आई हैव स्टडीड इन दिस यूनिवर्सिटी, यू आल्सो स्टडी, दिस इज द लॉयल्टी स्टेज, राइट। तो दिस एट पर्टिकुलर थिंग एंड एडवोकेसी में वो आपका एडवोकेट बन जाता है कि जैसे हम देखते हैं ना नॉर्मली जो रिलीजियस में बाबा वगैरह जो होते हैं, जैसे उनकी एडवोकेसी होती है कि भाई आपने मेरे बाबा को कैसे कह दिया, आपने मेरे धर्म के बारे में, ये जो चीजें होती है दैट्स एडवोकेसी स्टेज की। आपने मेरे प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात कर ली, आपने मेरे प्रोडक्ट के बारे में, वो तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, वो अच्छा चीजें बनाते हैं, लाइक दिस थिंग, राइट। जैसे पतंजलि एक ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बन चुकी है, इट्स कम टू दी नेशनल प्रोडक्ट्स, तो पतंजलि को एक नेशनल ब्रांड की तरह वो मार्केट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट थीम पे मार्केटिंग होती है। तो लाइक दिस यू कैन टॉक टू एआई, यू कैन चैट विद देम, यू कैन फिगर इट आउट। मैंने आपको सामने एक पूरा कैंपेन डिजाइन करके दिखा दिया। सो आई होप you all have loved this session and there are many giveaways for you all, like मैंने आपको एक ड्राइव लिंक शेयर करा है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। एंड लेट मी शेयर इट अगेन। सो I will be giving you that particular thing, okay, give me the time, I'm just actually. Okay, so if anyone has any questions related to today's topic, please feel free to ask. Yeah, anybody has any question, they can ask. They could raise hand. Any questions anybody is having, they can ask. This is the drive link which you all can access. Yeah, all kind of tools and things are present over here. You can explore the frameworks, you can work on your pace. It's free of cost for all of you. Yes, Achal. Hello. Yes, Achal. What are some misconcept about AI? Yeah, so the biggest misconcept about AI is like many people think that AI can be applied everywhere. So, firstly, you will have to figure out what AI is actually, right? And what are its application. Like as we have seen in earlier slides, I have given you one slide where the things are written over like where AI is actually used, right? So first you will have to figure out where you have to apply the AI
and then you have to research it out of yourself, and then you have to just decide, and AI is applied here. And many people thinks, and second point is, many people thinks that AI will replace the humans. This kind of becomes one fantasized thing. Many people think it as a fantasy. AI can't easily replace the humans, because humans are actually running artificial intelligence. But the thing is, AI will work with humans, right? As we can see here, that if we talk about the recent case study I just told you, in that particular fourth pillar, like heliograph actually helped the journalist to generate the news related to the sports, related to the election. There you can see that AI is actually helping. So these were the two misconceptions. First is where to actually use the AI, and second is what AI is beneficial for us and how it will work with humans. That's the two misconceptions. Yes, Achal. Any more question or any doubt related to the question you have asked? Limits of AI. Okay. So the limit of AI. Very good question. That what is the limit of artificial intelligence? So right now, the AI actually also works in four stages, right? The first is actually the thing which comes, which is known as ANI, artificial narrow intelligence. Narrow intelligence, we all know it as a narrow intelligence, not that much intelligent. So there the limitation come when it's come to the data analysis part, right? Second thing is AGI, artificial general intelligence, and third is artificial super intelligence. I've actually told before, it's actually three. One is artificial super intelligence, where the humans can't reach, and there are different models. Like if I talk about the basic stuff, right? If we talk about simple AI, what is like generative AI? If we talk about, so what are the limitations of Gen AI? If we talk about video generation, there are different algorithms actually, Achal. There are different algorithms used. Each algorithm has its own importance and own misconception and own scope of improvement. Basic example अगर मैं आपको दूं, तो you can't use same ball in different games, right? Like if we played like tennis, so you will have to use tennis ball. If you will have to play cricket, you can use tennis either, or you can use cock ball. You can't use ping pong ball in playing cricket. So like that, there are different algorithms. Like as you have if you are a computer science student, you know that there are different algorithms. There are different languages. Each language has its pros and cons. Like this, there are different models of artificial intelligence. There is generative AI is a model. And if we talk about the convolutional neural network, CNNs are there. There are normal neural networks which only works on numerical data. There are CNN which works on image data. So there are different kind of algorithms, and based on the algorithms and use cases, the limitation actually differs accordingly. I hope now it's clear. Yes. Any more doubts and question to from anyone, they can ask very much freely. And if you want to connect with me, you can just connect with me on my LinkedIn, on YouTube, on Instagram. I'm available on three these platforms. You can connect me on that. So I think all the doubts are over, or anybody more is having any doubt? Okay, so now I would like to hand it over to our respected online director, Dr. Reva Prasad Mishra, sir, for the vote of thanks. Thank you, Sakshi. Indeed, it's a great pleasure. Today, on behalf of Modi University Center for Online and Distance Education, Professor Reva Mishra, giving from bottom of heart a lot of thanks. And it was a knowledge sharing session which is covered all the aspects of AI, like from artificial intelligence to inner transformation, as well as true knowledge and wisdom explored by the Harshvardhan Purohit ji. So thanks a lot
On behalf of Sri R.P. Modi ji, with the blessing of God, Sri Anant Modi ji, Raghavind Anant Modi ji, and our Honorable President Sir, Sri Ashutosh Bharadwaj ji, Thank you, sir. along with all the staff member of Modi University. Special thanks to Registrar Sir, Vinod Purohit Sir, along with all the family members of Modi University. We are very pleased and we are very much thanks whatever knowledge as in the form of AI with the help of words of wisdom, Mr. Harshvardhan Purohit, who has enlightened us a complete journey from artificial intelligence, usability, productivity, even how to place your value, how to understand the demands of the market, how to understand the data driven technology, how image processing, how value based service industry completely known with the help of AI. So we are very much thankful to you, Mr. Hertz. May God bless you. You much do progress. Keep it up. Well done. Thanks a lot once again to everyone for joining us. All the participants, keep in touch with such a knowledgeable person who has a deep knowledge about the era of AI. And in coming days, definitely we will hope and awaited more session on such a beautiful topic, which is useful for everyone. So thanks a lot. Keep in touch. And for any problem, for any type of solution, everyone, those who are expecting in future, those who really want to become their startup, their funding, their promotion, their digital marketing, super staffs available in the form of Harshvardhan Purohit. So thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you God so much. bless you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Namaskar. Thank you.